Hello students, so we are here with the topic probability। यानी हम लोग आज जो है वो बिल्कुल बेसिक से लेके हायर लेवल तक की probability समझेंगे। ना सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि probability है क्या। probability हम लोग कहते हैं chances, किसी भी घटना के, कोई event के होने के chances। That means whenever an event occurs, then what is the chance that that particular event will be going to come। When we take an experiment, आप कोई भी experiment लीजिए, जैसे experiment में क्या हो सकता है, हम लोग experiment उसे कहते हैं जहाँ पे अगर कोई भी activity की गई तो उसके एक से ज़्यादा आउटकम आएंगे। सो व्हेन वी आर हैविंग मोर देन वन रिजल्ट, से फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टेक अ डाई एंड इफ आई रोल इट, किसी पासे को अगर आप फेंकोगे तो यू विल बी गोइंग टू गेट 6 डिफरेंट आउटकम्स। तो वो 6 डिफरेंट आउटकम्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। इन अ बैग इफ देर आर 10 balls of different color, say for example 6 balls are white and 4 balls are black, then if I ask you a ball is drawn, it can be white, it can be black, तो that means उसके आउटकम जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। तो जिस भी एक्सपेरिमेंट के एक से ज़्यादा आउटकम होते हैं उसे हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहते हैं अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम लोग कॉइन को फेंकते हैं तो हमें एक नहीं 2 आउटकम मिलते हैं। तो वो 2 आउटकम क्या हैं? हमें हेड मिल सकता है या हमें टेल मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने किया है कि कॉइन को उछाला गया, दैट इज नोन एज एन एक्सपेरिमेंट। सो इन द सेम वे अ डाई इज रोल्ड। When I say that the dial is rolled, here if we take a coin, say for example I'm just taking a diagram of a coin so that we can understand, and if we go with a die means if I'm having a cubical die with me, 1 and 2 and 3 like this, if the die is rolled we are going to hit 1 2 3 4 5 or 6. So there are 6 different outcomes. So there are few terms that we have to understand out of these experiments. इन सभी एक्सपेरिमेंट में से इवेंट किसे कहेंगे? सो व्हेन वी से इवेंट इज द पर्टिकुलर आउटकम, हम किस पर्टिकुलर आउटकम की बात कर रहे हैं? जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं ई एक इवेंट है तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज गेटिंग अ हेड। तो यानी क्योंकि मेरे पास 2 आउटकम हैं, मेरे पास हेड भी आ सकता है, मेरे पास टेल भी आ सकता है, इसका मतलब हम लोग हेड आना या टेल आना इसको एक इवेंट कह सकते हैं। इन द सेम वे इफ आई से एफ, when I take this experiment a die is rolled, I am saying getting an even number. So getting an even number. So whenever even number we see, so there are different outcomes. So that different outcomes, that means we are having even number means 2 4 or 6. So these are known as an event. And if I take the probability, the basic definition is when we say probability of event E, it is denoted by PE, which is equal to number of favorable outcomes. तो मैं यहां पे एक डेफिनेशन लिख रहा हूं NE upon NS, इसे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं आपसे यहां पे इवेंट ई की बात करूं, सो फॉर इवेंट ई हाउ मेनी आउटकम्स वर देयर विच इज इन फेवर ऑफ गेटिंग अ हेड? इन दोनों में से सिर्फ एक है, तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 2। तो 1/2 is the probability of getting a head. And if I go with F, so what is probability of F? Probability of F means I'll be going to check that how many favorable outcomes are there for F. F says getting an even number. Just now we have calculated even numbers means 2, 4 and 6.
So we will say that probability of F will be there are 3 outcomes out of 6. Here also the coincidence is we are getting the same result 1/2. So the first definition that you have to keep it in mind is probability of an event is number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. The second thing that we have to understand is non-occurrence of the event. If I say that probability of E naught, or we say probability of not E like this, or we say probability of E bar, all these three, the meaning is same, non-occurrence of the event E. So that will be equal to, we know, if I take one example, here I am saying the same experiment, a die is rolled, so outcomes are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So there are outcomes, 6 different outcomes were there. If I say that the event E is getting a number more than 4, if I say an event E getting a number more than 4, you will say that there are 5 and 6. Now if I ask you, then what will be the probability of non-occurrence of E? So that means I will be going to calculate probability of not E, or just writing probability of E bar or probability of E dash. It is equal to number of favorable outcomes, that is number of favorable outcomes of E naught, number of favorable outcomes of not E, that means not occurrence of E, and upon total number of outcomes. So when we go for total number of outcomes, you will find that E was the event in which we are finding, हमें वो देखना था जिसमें नंबर जो है वो 4 से ज्यादा है, तो 4 से ज्यादा में 5 और 6 था। और अगर हम लोग यहां कहते हैं नॉट E, यानी E इवेंट नहीं हुआ, आपको 4 से बड़ा नंबर नहीं मिला, तो आपको मिला क्या? हमें मिला 1, 2, 3 या 4। तो मैं यहां पे कहूंगा मेरे 4 आउटकम्स फेवरेबल हैं, डिवाइडेड बाय 6, मेरा आंसर आना चाहिए 2/3। आप इसको यूं भी कह सकते थे, क्योंकि मेरे पास 2 ही आउटकम है तो मैं पूरे आउटकम्स में से 2 आउटकम्स को कम कर दूंगा। तो आप देखो, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता था, ये जो आउटकम्स है इसको मैं ये लिख सकता हूं कि टोटल हैं 6, उसमें से मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2, और डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए। इसको अगर मैं सेपरेट करूं तो ये हो जाएगा 1 - 2/6। अरे ये 2/6 कौन था? ये था हमारे इवेंट E का, क्योंकि यहां मैं अगर आपसे पूछता कि भाई व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E, आप क्या लिखते? 2 फेवरेबल आउटकम है डिवाइडेड बाय 6, यानी कि मेरा आंसर 1/3 है। और यहां पे भी मैं वही देख रहा हूं, तो इसका मतलब हमारे पास ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, नॉन ऑकरेंस ऑफ E इज, ये हो गया 1 और वो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E। So this is very important formula when we say that the probability is having different formulae। तो ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला आता है, non occurrence of E। अगर मैं कहता हूं कि बताइए हमारा काम हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 1 - हमारा काम नहीं हुआ। सो ये 1 जो है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी अगर किसी इवेंट के ऑकरेंस की आपको प्रोबेबिलिटी मालूम है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए आप ये सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला इन द प्रोबेबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इन दिस प्रोबेबिलिटी इज द रोल ऑफ सेट्स। आपको बता दूं, सेट थ्योरी के अंदर हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसका बहुत बड़ा रोल है, जहां पे हम लोगों ने सेट्स में देखा था कि अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसको हम लोग अब कहेंगे पूरा सैंपल स्पेस, जिसमें सारे आउटकम ले लिए जाएंगे, तो ऐसे में एक सेट हमारे पास दे रखा है A, जिसको हम लोगों ने एक सर्कल के जैसे डिनोट कर दिया, और दूसरा वाला जो है मेरे पास वो है B।
मान लीजिए ये रहा। अब अगर मैं यहां पे मैं इस सेट को लिख दूं B और पहले वाला मेरा सेट था A, तो ऐसे में हम जब ये पूरे ग्रुप को देखते हैं, ये पूरा हम लोगों ने लिया, इस पोर्शन को किस नाम से जानते हैं हम लोग? यहां जानते हैं इसको एज A यूनियन B। इसका मतलब ये हुआ, आप इसके एलिमेंट देखो, अगर मैं यहां पे एलिमेंट बताऊंगा तो मैं कहूंगा वो एलिमेंट A में है या वो एलिमेंट B में हो सकता है। यहां लगा दो तो कहेंगे हां A में भी है या B में भी है। इसीलिए इस लैंग्वेज को क्या कहते हैं हम लोग? A और B। तो इस A और B को, यानी हम लोग इसको यह भी कह सकते हैं आइदर A और B। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B, दोनों में से कोई भी एक। तो ये जो आपको डिफरेंट लैंग्वेज दिख रही है, ये सारे के सारे किसको डिनोट करते हैं? हमारे सेट थ्योरी में पढ़े गए A यूनियन B को। क्लियर? अब इसके अंदर हम लोग के क्या देखते हैं, हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी आती है कि देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B? तो हम कहेंगे नंबर ऑफ A यूनियन B देख लो और पूरे सैंपल स्पेस के कितने आउटकम हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ऐसे में व्हेन वी गो फॉर यूनियन, तो हम कहते हैं पहले A के काउंटिंग की, वैसे ही हम लोग जानते हो ये यूनियन कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपको ये समझाऊं कि पहले हम लोग इस पूरे को लेते हैं, अब देखो इस डायग्राम को कैसे समझना है। अगर मैं आपको यहां से इस डायग्राम को दोबारा बनाना बताऊं तो आप लोग इसमें काउंटिंग करना चाहोगे, तो मैं काम करता हूं, सबसे पहले मैं ये ब्लैक वाले पूरे गिन लूंगा। तो ये पोर्शन कौन सा हुआ? ये हो गया A, ठीक है। उसके बाद मैंने सेट B को लिया और मैं उसके पोर्शन को गिन लेता हूं, ये मैंने B को काउंटिंग कर दी। तो यू विल फाइंड दैट बीच में जो कॉमन एरिया है वो 2 बार काउंट हुआ। इसका मतलब इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ A काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ B काउंट कर लीजिए, उसमें यहां पे डबल शेडिंग आई है, ये 2 बार काउंट नहीं होंगे, एक बार माइनस हो जाएगा। सो दिस इज नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ S, number of S, number of total sample space, total outcomes. So this is number of favorable outcomes of A upon total number of outcomes. इसे कहते हैं probability of A। ये है हमारे पास number of outcomes of B, favorable outcomes of B divided by total number of outcomes. So इसे कहते हैं probability of B। और ये क्या हुआ? इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब ये A इंटरसेक्शन B को कैसे पढ़ते हैं? अगर हम लोग यहां पे इस सेट को वापस बनाएं तो हमारे पास सेट A और सेट B, ये जो 2 पोर्शन आ रहे हैं मेरे पास, ये बीच वाला पोर्शन होता है कॉमन एरिया। अब आप ये देखो, इस पर्टिकुलर पोर्शन में जहां मैं इसको A लिख रहा हूं और मैं इसको B लिख रहा हूं, तो इस एलिमेंट की खासियत क्या होगी? तो ये जो हमारे पास एलिमेंट है, ये क्या कह सकते हैं इनके बारे में? इनके बारे में एक ही चीज कही जा सकती है, भाई ये दोनों में है, इट इज इन A एंड इन B। इसका मतलब ये हुआ कि A इंटरसेक्शन B को हम लोग कहते हैं, क्या लैंग्वेज हो जाएगी इसकी? इसकी लैंग्वेज को कहा जाता है A एंड B, एक साथ, together, simultaneously. So these are different words that you will be going to see in the questions. तो हमारे क्वेश्चन में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो समझ लेना इंटरसेक्शन है। जैसे कि आप जानते हो क्लास 12 के अंदर हम लोग ये इंटरसेक्शन पढ़ते हैं और 11th क्लास में हमारे पास ये वाली थ्योरम आ जाती है, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो ये होगी हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला, रादर पहला फॉर्मूला मैंने आप लोग को अभी बताया था, जिसके अंदर हम लोग नॉट A की बात करते हैं। अभी हम लोग यहां क्या कह रहे हैं? सो दिस इज नोन एज एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये जो एडिशन थ्योरम है, ये हमारे सारे यूनियन वाले क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहां पे आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन जो है दैट विल बी गोइंग टू कम इन क्लास 12। और इसके साथ साथ आप देखोगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आता है जहां पे हम लोग आइदर A की जगह नाइदर A नॉर B लेते हैं, तो उसे कैसे करते हैं मैं बताता हूं। उसका डायग्राम बनेगा
जब हम लोग बात करते हैं नाइदर ए नॉर बी, यानी कि वो ए में भी नहीं है और वो बी में भी नहीं है, इसका मतलब वो कहां मिलेगा? वो बिल्कुल बाहर मिलेगा। ये बाहर वाला जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं हम लोग नाइदर ए नॉर बी। सो यू कैन सी दैट इस डायग्राम में, ये जो मैंने डायग्राम आपके सामने बना के दिया है, ये कौन सा पोर्शन कहलाएगा? इसे कहते हैं नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, इसे कहते हैं ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, यानी ये क्या बनता है? इसे हम लोग जब कह देते हैं नाइदर या नीदर ए नॉर बी, तो इसे हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जहां कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन। क्लियर? सो दैट मीन्स जब हम लोग यहां बात करते हैं कि आई वॉन्ट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, आई विल बी गोइंग टू टेक, अब ये ध्यान रखिएगा मैंने जैसे डैश का प्रयोग कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी के अंदर, ये लैंग्वेज जो है यूं भी लिखी जा सकती है, नॉट ए एंड नॉट बी। तो टेंशन मत लेना अगर ये बार लगा हुआ है या डैश लगा हुआ है, क्योंकि अगर सेट थ्योरी का प्रयोग करोगे तो यहां पे डैश लगेगा, या हम लोग इसको यूं भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। तो यहां पे विल बी गोइंग टू यूज डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या था? डी मॉर्गन्स लॉ ये था कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन होता है और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स होता है। ये ध्यान रखना है हमें। तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, मैं सीधा सीधा कहूंगा भाई ये क्या बना, ये तो बन गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट, किसी इवेंट का अगर नॉट लगा हो तो 1 में से माइनस कर देना, तो ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये है हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले। इसके अंदर आपको बता दूं कि एक फॉर्मूला और हमारे पास कई बार आता है, हमें कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर बी नहीं हुआ, यानी सिर्फ ए हुआ। तो ऐसे में हम इस फॉर्मूले को भी यहां पे हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो नाइदर ए नॉर बी के लिए है, जो मैंने यहां पे लिखा है आपके लिए। और एक लास्ट वाला पार्ट और लेते हैं, ये ध्यान रखना, ये डायग्राम ए का था, ये बी का था। अब जो आखिरी वाला मैं ले रहा हूं वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुआ परंतु बी नहीं हुआ, या लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। तो कैसे करेंगे? इसके लिए मैं फिर से वेन डायग्राम की हेल्प लूंगा। मेरे पास अगर एक वेन डायग्राम दे रखा है जहां पे सेट ए एंड सेट बी, ये दो सेट मेरे पास ऑलरेडी थे। अगर हम कहते हैं ए में है पर बी में नहीं है, तो इसका मतलब आई एम फाइंडिंग दिस पार्ट। क्लियर? अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं पूरे को अगर यहां पे डॉट लगा दूं तो आप देखिए ये वाला जो मैंने पोर्शन आपको बताया है ये क्या बनेगा। यहां से साफ पता लग रहा है ए में है पर बी में नहीं है। अगर ऐसे की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे क्या दिख रहा है, पूरे ए में से ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव किया गया। बेस्ट पार्ट यही रहेगा, यही मैं अप्लाई कर देता हूं। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से दोनों का कॉमन पोर्शन हटा दीजिए। तो ये हो गया हमारा वो तीसरा फॉर्मूला, रादर चौथा फॉर्मूला है ना। पहला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा नॉट एग्जिस्टेंस या नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई। उसके बाद मैंने यूनियन बताया जहां ए बी का प्रयोग किया, नाइदर ए नॉर बी का बताया, और ओनली ए, यानी हम लोग इसको क्या कहते हैं, ओनली ए बट नॉट बी। तो बच्चों ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से चलो एक या दो मैं क्वेश्चंस आपको करके बता। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ डाई इज रोल्ड वंस, यानी कि एक पासा हम लोगों ने फेंका एक बार, एंड फॉलोइंग इवेंट्स आर ऑब्टेन्ड। मैंने यहां पे दो इवेंट लिए हैं। पहले इवेंट में क्या लिखा है, ई नाम का इवेंट है जिसके अंदर लिखा है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर? तो 3 के, अब वो हिंदी में हो जाता है बीच में, 3 या 3 चलेगा। सो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड द सेकेंड वन इज गेटिंग एन इवन नंबर।
तो अगर मैं यहां बात करूं कि मेरे ये जो पहला इवेंट है इसके आउटकम कितने हैं, और सबसे पहले तो भाई हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसके सैंपल स्पेस में कितने होंगे, मेरे पास होंगे 1 2 3 4 5 या 6, मेरे पास 6 आउटकम हैं। अब अगर ये 6 आउटकम हैं तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन से हैं, सिर्फ 3 और 6। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे गेटिंग एन इवन नंबर, तो इसके आउटकम में मेरे को मिलेगा 2 4 या 6। क्लियर। तो सबसे पहले बेटा यहां बोला जा रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये कहता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। बहुत सिंपल, 2 ही आउटकम है डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 1/3 हो गई। अगर मैं बात करता हूं यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बताता है, नंबर ऑफ एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया, एफ के 3 आउटकम है डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 1/2। हमारी अच्छी चीज स्टार्ट होती है जो क्लास थोड़े सा हायर लेवल में आ जाती है, यूनियन। और कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम लोग करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मैं यहां पे ले लेता हूं ई यूनियन एफ, जिसका फॉर्मूला था ई की प्रोबेबिलिटी प्लस एफ की प्रोबेबिलिटी आएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। अब ई की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाल रखी है 2/6, एफ की निकाली थी 3/6। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एरिया। कॉमन एरिया दोनों में कॉमन कौन है, तो मैं यहां हाईलाइट कर देता हूं, 6 कॉमन है यानी कि एक ही आउटकम कॉमन है 1/6। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 5 - 1 4 4 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 2/3 इसका आंसर है। और हमारे इस आखिरी वाले का नहीं, हम लोग यहां बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इंटरसेक्शन नॉट एफ, ये क्या होगा भाई, ये तो डी मॉर्गन्स लॉ जी ने बताया था, ये होता है ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट कह लो, है ना। अब होल कॉम्प्लीमेंट कहा तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ होगा। तो ये तो बच्चों बहुत ही आसान हो गया, ये हो जाएगा 2/3 से मैंने हटा दिया, तो ये देखिए ये हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1/3। और जब हम लोग बात करते हैं हमारे आखिरी वाले की, तो ये आखिरी वाला क्या था, तो ये देखो मैं यहां पे इनको मार्क कर देता हूं। मैंने यहां पे फर्स्ट वाला निकाला, सेकंड निकाल दिया, ठीक है। ये हम लोगों ने थर्ड वाला भी देख लिया। अच्छा यार, ये कैसे पता लगेगा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो मैं काम करता हूं यहां पे लिख देता हूं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, क्लियर, और ये हमारा थर्ड है। ये 3 तो हो चुके हैं, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा स्टाइल मारा है मैंने, तो ये 3 तो हो चुके हैं। ये मैंने फोर्थ वाला देख लिया। अब मेरा जो फिफ्थ वाला है, ये वाला जो पार्ट है, ये बड़ा सिंपल है कि जब मैं बात करता हूं कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या होगा, मैंने अभी बताया था, इसमें कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में से दोनों का कॉमन एरिया हटा देना। कॉमन एरिया मतलब कॉमन आउटकम हटा देना। इसके आउटकम कितने थे, ई के आउटकम है मेरे पास 2, तो 2/6, और कॉमन में कितना था 1 यानी कि 1/6। तो यहां साफ पता लग रहा है मेरा आंसर आएगा 1/6। तो बेटा ये देखो, मैंने इस क्लास के अंदर आप लोगों को बेसिकली 10th और 11th क्लास का बेसिक फंडा बताया है कि 10th और 11th के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि ग्रेड्स कुछ भी हो सकते हैं, किसी और आप अगर बोर्ड से पढ़ रहे हो, तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहां पे मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए हैं और एडिशन थ्योरम बताए हैं। सो डेफिनेटली इफ यू वांट टू गो फॉर द हायर वन, क्योंकि सेकंड वाले के अंदर आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए यू हैव टू सी द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन दिस वाज द बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. Thank you very much and do share this one so that other students can also take the help of that. Thank you.